Menu singir cengir lesne. Sini pang phalijak borok sini players so wakai malai lei handshake lei boroni thani bo khum jono kaisa ya phari tinini football tournament no borok cengir lene. Taputai song sini adong song joto thanglajak sini players rong no borok jono kaisa ke khum ya phari tinini football tournament no borok cengir lene. Tahu song norok nudong knaro tawuk sing school ground of high sopalejak tini sini tournament Unokuti Challengers versus South Lions by thanglajak itongo awani bagai sing tai satsan yagolono borni tournament no sing nai manai. Hello. Ladies and gentlemen, we are now here at Bogafa School Ground and we will be seeing the live match between Unokuti Challengers and the South Lions today here at Bogafa School Ground. It is important to note that this is the third match that's been played. TTAADC Super League 2024. Jaya 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 Hey. Thank you so much, ladies and gentlemen. Sini national anthem si rasabaikat jotno no asuna bhai koinai sini audience no thai thari kai nungoi na hanai tabuk sini buskango football kick off ta khaini tabo sini chererok no koinai norok joto jani ja asuk thayo thangai asuk laidi tai abani yaguno football kick off khai renai sini dongsong koina hanai sini bohu rumino was kau phai sini bagi tang sar sawir na bagai opening song and tabni yagolono sini players rock borok barni thna bakha borok thanglai sinai hello
Hello, hello, hello. আরেকটু কেউ ইকো hello 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 pilano jotono ani phaisingti kabang hamjakma tai khapurma ya faru belai khakchango tini omohai jorao norongni boskango sok phai ang biang naisigi resapnai ang kisa palma yang jongkha yang tema naisingnai na guri no ma naisingnai so belai tini tongthongni jora omohai nangkungma jorao norongni boskango phaimanjak phai ang belai khatong thongjak ओंखाय omohai yapri semani bagai ang edisi hapang tai omono naikalui tongnai rongno belai hambaya fanai sini takuk David no ano oro ringma bagai ओंखाय norongni bagai tangsa rejamung rejabnai khakai norok jajagano hello একটু ইকো দিয়া দাও hello মাইকের মতো এসে hello জ্ঞান বাড়ছে জ্ঞান hello যত কিসা ইয়া পাখরা বই লগে রে Thank you so much. It's
Hambai, thank you so much everyone. Hambai belai ke jotono tai ang thungkurung rong no ani phaiching ti kabang hamjangma tai kha kupor ya faru ka hamke thunglai di hambai. After Busong Sini Trini tournament, Chengir Zaka. Belai jora kesem ni bising ofano sing jeman sing jora tui sal tong sasak paina ni bagi chai togi tong lai tok te Busong. Abani bagi nong ni buskango tabuk tournament choli tongo. Unokoti Challengers versus South Lions. Ladies and gentlemen, you're watching TSL TTAADC Super League 2024, and the match is happening at Bogota Stadium here, and it's really awesome to see the players playing really well, pushing really hard towards the opponent. Unokoti Challengers pushing hard towards the South Lions, and the match has kick-started already, and they've been doing really well, pushing really hard towards one another, and it is awesome to see the players here this afternoon. Namaskar. आज का जो मैच है वो धुरंधर दो टीम से जो है अनोकोटी और साउथ लायंस। आज तरफाए मैच बेतरफा ना हो जाए, इसलिए आज इस मैच का जो आंखों देखा हाल है वो आप लाइव टेलीकास्ट में देख सकते हैं। और दूसरे जो यहाँ पर महानुभाव आए हुए थे उन्होंने इसका अच्छा अनावरण किया है, और आज आशा करते हैं कि ये मैच को सब अपना बेहतरीन लुत्फ उठाएंगे। सब अच्छे पासेस, अच्छे हेडर्स, अच्छे किक्स, अच्छा डिफेंड, सब कुछ होगा आज यहाँ पर। बहुत ही सुंदर जगह है बोगाफा, और बेहतरीन यहाँ पर चांस बन सकता है, लेकिन गोलकीपर सतर्क, कोई चांस नहीं यहाँ पर। आज हम लोगों का चौथा दिन है एंड ग्रुप ए का दूसरा मैच है ये। ऑलरेडी क्राउड आ चुके हैं एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया वेदर है आज, बहुत ही बेहतरीन वाला। दोनों ही टीम प्रदर्शन बनाते हुए अपना, लेकिन आज ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाफ में कौन सा टीम जो है पहले गोल बनाती है। हमारे साथ है उनकोटी चैलेंजर और साउथ लायन। हरे जर्सी में है उनकोटी चैलेंजर और येलो जर्सी में है साउथ लायन। 24 नंबर प्लेयर के पास बॉल, बेहतरीन वाला पास, लॉन्ग पास,
लेकिन एक बात है दिव्यांगन, आज जो भी मैच हो रहा है उसमें जो आज ये जो पासेस हो रहे हैं ना आपस में टीम के, वो अच्छी सूझबूझ रही है, यही सूझबूझ रहनी चाहिए पूरे गेम तक। और ये गोल, और ये पहला गोल दाग दिया है साउथ लायंस ने। बेहतरीन गोल यहाँ पर पूरे, आप देखिए डी बॉक्स के कॉर्नर से शॉट था और एकदम गोल पोस्ट के कोने में। क्यों दिव्यांगन? भाई तो बोलते ही बोलते साउथ की तरफ से एक गोल हम लोगों को दिखती हुई। हाँ, अपने ही जो ग्राउंड है इनका, खुद के ही ग्राउंड पे गोल बना दिया है। और ऐसा लग रहा है कि उनको अपने ग्राउंड पे खेलकर जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, तो आज साउथ तो जलवा दिखा सकती है। क्या लगता है आपको मिठुन भाई? बिल्कुल अच्छा, अनुकुटी भी कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनुकुटी में भी वो प्रभाव है, वो दम है, क्योंकि जिस तरह के पासेस, अपने पैरों की जो मशक्कत दिखा रहे हैं, वो हलचल जो है ना दोनों टीमों की अच्छी है, अच्छी प्रैक्टिस है दोनों टीमों का। और डिफेंड, स्ट्राइक, जो भी बोलो आप दिव्यांकन, इसमें दोनों टीमें ही बराबर आपस में जो भिड़ंत है, वो चलो वो जो गोल हुआ है वो काबिले तारीफ है, लेकिन दोनों टीमें अच्छा जज्बा है। एक बेहतरीन वाला किक मिला था, बट जो गोलकीपर है उन्होंने बचा लिया है। अभी देखना पड़ेगा क्या ऊनुकुटी की तरफ से एक गोल हम लोगों को देखने मिलेगा कि नहीं। देखते हैं क्या करते हैं ऊनुकुटी टीम, क्योंकि गेम अभी स्टार्ट ही हुआ है। कितना मिनट होगा, आपको क्या लगता है? 5-6 मिनट गेम जो स्टार्ट हुआ कुछ होगा, 10 मिनट लगभग। ये 10 मिनट के अंदर पहला गोल हम लोग को दिखती हुई। और जैसे कि आपको पता है साउथ की जो ये स्टेडियम है उनको अच्छा प्रैक्टिस है, तो उनको पता है कि कैसे रणनीति करना होगा और गोल देना पड़ेगा। बाकी हम लोगों की तो आंख है ही ग्राउंड पे, आपका भी नजर होना चाहिए, आप भी देखते रहिए हमारे साथ। बढ़िया वाला टैकल, कोशिश है गोल करने की, आगे बढ़ रहे हैं, बट डिफेंडर के पास वापस से बॉल जाती हुई। बहुत ही कश्मकश गेम प्ले होते हुए पहले ही फर्स्ट हाफ के अंदर ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि भाई जो है दोनों ही टीम एकदम अपना बढ़िया प्रदर्शन देते हुए, बट साउथ ने एक एडवांटेज ले लिया है। अभी देखना पड़ेगा क्या ऊनुकुटी चैलेंजर वो दम दिखा पाएगा, क्योंकि आपको पता है फुटबॉल जो 90 मिनट का गेम है रुकती नहीं है टाइम इधर पे। दीपांकर, मुझे ऐसा लगता है कि जो साउथ लायंस है उनका जो आप डिफेंस बोलो या स्ट्राइकर या मिडफील्ड, बढ़िया है। अब तक की जो रणनीति है उनकी अच्छी रही अब तक, और हरे रंग पर येलो कलर प्रेशर बनाते हुए, तो ऐसा ही बना रहना चाहिए। जो अगर फॉर्मेशन है ना इनकी फुटबॉल की 4-4-2 की, 4-3-3 की, तो ये फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप आके गोल कर सकते हैं। तो अभी तक का जो लेखा जो का हाल है हम जो देख पा रहे हैं, तो प्रेशर तो बना हुआ है ग्रीन कलर के ऊपर। अभी ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ में कि लेफ्ट विंगर्स आगे आके कितना स्ट्राइकर को पास देने के लिए खेलते हैं। बाकी तो मिडफील्डिंग और डिफेंडिंग दोनों ही टीम का बहुत ही बढ़िया है। अभी एक थ्रो इन के साथ 18 नंबर प्लेयर के पास एक बढ़िया वाला पास। फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर खेल को आगे बढ़ाने के लिए। बढ़िया यहाँ पर जो भी अब तक देख पा रहे हैं, यहाँ अब हम ऑनलाइन देख पा रहे हैं, जो जहाँ पर भी है त्रिपुरा के जिस कोने में भी है,
बेहतरीन TTAADC का बहुत ही बड़ा उद्योग यहाँ पर कि इन्होंने इस खेल को इस तरह से ऑनलाइन प्रदर्शन दिखा रहा है सबको, पूरे त्रिपुरा वासियों को। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये। आज ये चौथा मैच है और ग्रुप ए का दूसरा मैच। बढ़िया यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया आगे निकले थे, लेकिन गोलकीपर सतर्क, कोई चांसेस नहीं। और दीपंकर ये बताओ कि इस मैच में अब आगे की जो रणनीति होनी चाहिए ओनोकुटी की, वो क्या होनी चाहिए? जैसे कि ऑलरेडी साउथ ने एक गोल बना लिया है, उनोकोटी को थोड़ा सा धीरे से खेलना चाहिए क्योंकि टाइम और भी है। ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो जा रहा है या फिर टाइम हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, फास्ट हाफ खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम है। उनको कोशिश करना है कि पहले हाफ में एक गोल वो बना पाए तो उनका प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी अभी ऐसा देख रहे कि ओनोकुटी के जो डिफेंडिंग है वो डिफेंडिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना पा रहे। बाकी ये देखना पड़ेगा, वो क्रॉस भी अच्छा खेल रहे एंड वो जो है अच्छा रूम बना के खेल रहे हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या साउथ और एक गोल मारेगा कि ओनोकुटी आगे लेके जाएगा गेम को, बट प्रदर्शन जो है दोनों ही टीम का बढ़िया हो रहा है। देखिए मिडफील्डर जो है ना, मिडफील्डर को यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अभी आपको बॉल को उस तरफ कैरी फॉरवर्ड होने नहीं देना है और पैरों की जो हलचल है ना वो बनी रहनी चाहिए अंत तक, क्योंकि 90 मिनट्स का गेम है, आपको हलचल बना रहना चाहिए। आप बॉल को अच्छा कैरी कीजिए, अच्छा डिफेंड कीजिए, तो अभी आप अपने जो एक गोल हो चुका है ना उसको आप बचा सकते हैं। और कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप उस पर पूरी मेहनत करेंगे और एनर्जी फुल ऑन होना चाहिए। और ये एक गोल की कोशिश, बट डिफेंडर जो है बहुत ही बढ़िया वाला टैकल करते हुए बॉल बढ़िया वाला पास। इधर पे हम लोगों को ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू नहीं दिख रहा, बट जितना मुझे लग रहा है 32 नंबर और 18 नंबर के जो डिफेंडर है इधर पे वो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे, बॉल को आगे नहीं आने दे रहे और गोलकीपर के साथ अच्छा वाला कोऑर्डिनेशन लय मेंटेन कर रहे। बाकी मैं है ना थोड़ा सा मिल्टन भाई से भी पूछना चाहूंगा कि उनका क्या राय है, क्या बोलना चाहेंगे वो। एक्चुअली जो आज गेम देखने को मिल रहा है हम लोगों को, it's really interesting to see and watch both the team fighting really hard. This might be an opportunity, but no, they couldn't make the score. The South Lions have been doing really well because it's their home ground, and they have actually practiced really well in this ground already. So they understand the field and how this field has to be tackled with strategically. So these players here this afternoon at Bogafar Stadium is doing really well from the South Lions team, scoring 1 and for the Unokuti is 0. It's a corner kick and the players have tried their best to shoot in for the goal, but they really couldn't make it at this point of time. It is to see who is going to make another score at this point of time, and let's see who can beat who this afternoon. South Lions versus Unokuti Challengers this afternoon at Bogafar Stadium. देखिए मिडफील्डर का जो काम होता है वो है पूरे मैदान में अपने स्ट्राइकर को बॉल को ले जाके दे देना। बाकी स्ट्राइकर का काम होता है कि उसको गोल देना, क्योंकि स्ट्राइकर अगर उसको अच्छे से पास करके उस स्ट्राइकर को बॉल दे देंगे जो मिडफील्डर है, तो बॉल को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाके वो गोल करते हैं। तो आपको ये बना रहना चाहिए कोशिश कि आप जितना हो सके स्ट्राइकर को बॉल दें, क्योंकि लेफ्ट विंग राइट विंग जो भी है उनको भी एक कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए एक गोल तो दे दिया साउथ लायंस ने और ओनोकुटी चैलेंजर्स भी एक कोशिश करेगी कि वो भी एक गोल करे। तो उनको ध्यान देना है कि जो स्ट्राइकर है और मिडफील्डर में आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो बने रहना चाहिए, ताकि ये मैच आगे जितनी खूबसूरती से बढ़ेगा तो आप एक गोल कर सकते हैं। क्यों दीपांकर? बात तो एकदम सही है, बट मुझे ओनोकुटी चैलेंजर्स के अंदर थोड़ा सा लय ब्रेक होते देख रहा है, क्योंकि उधर पे मैं देख पा रहा हूँ कि बॉल जो है वो लोग कंट्रोल पे नहीं ला पा रहे, कहीं ना कहीं मिसेस हो रहा है बहुत ज्यादा।
उनके मिडफील्डर से स्ट्राइकर के पास वो अच्छा वाला पास नहीं दे पा रहे। शायद से ऐसा भी हो सकता है ग्राउंड जो है उन्होंने इससे पहले इसमें प्रैक्टिस ना किया हो, या फिर पहला 15-20 मिनट उन लोगों को ग्राउंड पे कैसे क्या करना है उनको देखना है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि उनोकोटी चैलेंजर्स करेंगे जरूर, गोल बनाएंगे, रणनीति चेंज करना पड़ेगा। एंड बहुत ही बढ़िया वाला थ्रो इन, बट जैसे कि मैंने बोला कोऑर्डिनेशन लैग होगा तो नहीं, बात नहीं बनेगी। वो जो आप बोल रहे थे कि मिडफील्डर से स्ट्राइकर के पास बॉल जाना, तो वो स्ट्राइकर को मिडफील्डर बॉल ठीक से पास नहीं कर पा रही। अगर पास एंड प्ले हो जाए तो उम्मीद है एक टीम से, उनोकोटी से हम लोगों को एक ना एक गोल तो देखने को जरूर मिलेगा। उनोकोटी निंगई जरा थिंग तोंगने रा बरो बेलाई के प्रेशराइजिंग लाइक तमने के कैसे गोल ऑलरेडी बनी थाने स्कोर क्लाइ रे जाका आबनि बागै ताहते बुसनर नगुइ दंगो उनोकोटी नि बखाक टेके बेलाई के बॉल पुश क्लाइ जागि दंगो फियाबा ताबुक साउथ लाइन्स ऑफ बसकांगो थांगि दंगो गोल स्कोर खाइना बागै नाइ नाइ साबो स्कोर खाइनाय टैकल क्लाइ बनि डिफेंडर नारगे रखा बॉल player change around Nuktaka Unokuti Ningi 14 number players Patron Nongkori 16 Bishing of Hapeka Pulani first half on Boroni player change Kajaman Inoka strategy change Kajana Yoro Kakayo Boroni players of players on the Bishing of Tekisha coordination to Nabagi take it Boroni gameplay Natornabagi Abahake player change Ladies and gentlemen, as you can see that in the first half itself, Unokoti has made their player change in between the players. Number 14 has gone out and 16 came in. This is to change the strategy in the gameplay of the players from Unokoti challengers because they have already been scored and they need to make their strategy different in the field right now. जहाँ तक ये मसला अब तक है कि ओनोकुटी के पास अभी कोई गोल है नहीं फिलहाल, और अभी गोल कॉर्नर के लिए गया है और आशा करेंगे कि अच्छा एक कॉर्नर हो यहाँ पर जाके वो हेडर से दूसरा जो है वो मिल जाए। अच्छी शॉट यहाँ पर देखते हैं, अच्छे गोलकीपर सतर्क, कोई चांस नहीं यहाँ पर, हाथों में डाल दिए बिल्कुल। और यहाँ पर देखना पड़ेगा भी ओनोकुटी क्या करता है। ओनोकुटी के पैर में गेंद और यहाँ पर धक्का थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल सेफ और आगे बढ़ते हुए फिर से ये दे दिया बॉल साउथ लायंस को। अच्छी यहाँ पर ड्रिलिंग, अच्छी ड्रिल कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा ओनोकुटी का शॉट, बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, लेकिन फिर से हाँ वहां पर चला गया है बॉल, साउथ लायंस के पास गिर गए। बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हुए अभी ओनोकुटी के कोच को थोड़ा सोचना पड़ेगा, लालमिंग थांगा डाल उनके कोच हैं कि किस तरह से उसके कैप्टन जो है जेबेदियान उनको थोड़ा बताए। थ्रो इन
थ्रो इन है ओनोगुटी का। अच्छा, थ्रो इन अगर होगा बहुत ही करीब है गोल पोस्ट के, तो शायद यहाँ पर थोड़ा पासेस होगा, तो देखते क्या होता है। जी नहीं, यहाँ पर फिर से देखते क्या है, नहीं कोई नहीं। चलिए, जो भी मसला अब तक तो अच्छा ही लग रहा है, गेम बराबर चल रहा है। बाकी चलते हैं दबांगों के पास, उनकी क्या राय है इस मसले पर। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, जो मिड फील्डिंग होता है, मिड फील्डिंग में मिड फील्डर्स का फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, एंड वही एक चीज है जिससे बहुत ज्यादा लॉन्ग पासेस वो लोग खेलते हैं। एंड अभी वो ट्राई कर रहे हैं गोल बनाने का, बट बहुत ही बढ़िया वाला सेव जो है हम लोगों को देखने मिला गोलकीपर के तरफ से। चांसेस बहुत ज्यादा इनको मिल रहा है गोल बनाने का, बट अभी देखना पड़ेगा क्या वो अच्छे वाले पासेस दे के रूम बना पाएंगे कि नहीं। जितना तक मुझे दिख पा रहा है कि साउथ लायंस का जो है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला मिड फील्डिंग से स्ट्राइकर के पास पास जा रहा है, एंड डिफेंडिंग भी बहुत हार्ड है इन लोगों का। बहुत ही बड़े उम्दा वाला पास डिफेंडिंग 18 नंबर प्लेयर के तरफ से 21 नंबर प्लेयर के पास अभी पास गया, बट वापस से छीन लिया, बट ये एक थ्रो इन आएगा। एक अच्छा फॉर्मेशन की जरूरत है दिमाग में, जो भी बोलो यहाँ पर, नहीं तो गोल नहीं। यहाँ पर गोल पोस्ट के पास आप आ रहे हैं, अच्छा पास भी हो रहा है, लेकिन गोल नहीं दे पा रहे। तो सोचिए ये साउथ लायंस कितने सतर्क और कितनी अच्छी डिफेंड है, इतनी अच्छी डिफेंस कर रहे हैं कि वो मौका नहीं दे रहे। गोल पोस्ट के पास आ रहा है ओनोगुटी, लेकिन साउथ लायंस मौका नहीं दे रहे, वहीं से बॉल को छीन के दोबारा लेके चले जा रहे हैं। देखिए आप कितने करीब हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन चांस नहीं दे रहे हैं। इनका डिफेंस इतना तगड़ा है। अभी देखते क्या होता है साउथ लायंस का। ये यहां पर विसल बच गया, चोटिल हुए हैं साउथ लायंस के एक प्लेयर। यहां पर शायद एक कार्ड दिख गया है, रेफरी साहब ने कार्ड दिखा दिया, शायद हमें कुछ येलो कार्ड दिखा दिया शायद थोड़ी देर में। लेकिन 2 बार येलो गिरता है तो उसको वो टीम से निकाल देते हैं, उसको दोबारा उस टीम में नहीं जगा सकते, दूसरे प्लेयर आके खेल सकते हैं। तो जो भी अब तक था जो फलसफा है वो बढ़िया रहा। अब तक 1-0 की बढ़त लेकर आगे बढ़े हुए हैं साउथ लायंस, और ओनोगुटी 0। तो सूझबूझ बनानी चाहिए कैप्टन को, किस तरह के फॉर्मेशन अच्छा डाले और बॉल को आगे लेके जाए और एक गोल तो कम से कम करे, क्योंकि मौके आपके पास आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ओनोगुटी शायद से 4-3-3-1 के फॉर्मेशन में खेल रहे, एंड जैसे कि हम देख पा रहे कि डिफेंडिंग ओनोगुटी का बहुत बढ़िया है, बट मिड फील्डिंग में कहीं ना कहीं उनको बढ़िया पासेस नहीं मिल रहे। ये पासेस के वजह से ही अच्छा वाला कनेक्शन या रूम नहीं बना पा रहे। एंड साउथ लायंस की बात करूं तो बाप रे बाप, क्या ही डिफेंडिंग में खेल रही है साउथ लायंस, बॉल को गोल के पास आने नहीं दे रही है। बट अभी ये देखना पड़ेगा क्या ओनोगुटी के पास चांस है, बहुत ही बढ़िया वाला पास, एंड वो ट्राई कर तो रहे हैं, बट एक प्लेयर के साथ उनके 3 प्लेयर आके जो टकराव कर रही है, उन लोगों को खेलने का मौका ही नहीं दे रही है। बट देखना पड़ेगा ओनोगुटी क्या ही अपना प्लान चेंज करते हैं कि नहीं। बहुत ही बढ़िया वाला टैकल, बट इधर पे रेफरी की तरफ से विसल बचता हुआ। क्या इनको मिलने वाला है कार्ड, या फिर वो इसको टैकल बोलेंगे, देखते हैं। फ्री किक, वो लोग बहुत ही जो है अपने साउथ लायंस बहुत ही धीरे से खेल रहे। वो बोल रहे हम लोगों को भाई रोर करना नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे आएंगे तो सामने वाले धर धर कांपेंगे। तो पहले ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अपना गेम प्ले दिखाते हैं। जब लायन का पावर, शेर का पंजा मारने का जब टाइम आएगा तब वो भी मारेंगे, अभी फिलहाल मारने का जरूरत नहीं है। एक गोल किया है साउथ लायंस ने, और ओनोगुटी चैलेंजर्स को चैलेंज के ऊपर चैलेंज मिलती हुई, बिकॉज वो सामने आके फॉरवर्ड प्ले नहीं कर पा रही है।
इसके ऊपर मैं मिल्टन भाई से थोड़ा सा राय पूछूंगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। राय तो मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्या हाल चल चल रहा है यहाँ पे गेम, कौन गेमबाजी कर रहा है, कौन क्या किक मार रहे हैं. So let's see what happens here in this ground at this point of time. Onokuti Challengers taking the ball in the hands and then trying to score. Midfielders doing really well and is sent to the left wing, but it's offside. Players are really struggling very hard, and both the teams doing really well. But since South Lions have already made the first goal, they can relax for a while. And they might be, playing around with the ball, passing here and there, trying to pass the time, putting the ball in the air, and Onokuti Challengers having the tough time trying to tackle the ball, but are unable to push towards the goalkeeper. The defender missed the ball and had to run really fast towards the goal. And it's a goalkeeper. It's the goalkeeper taking the ball and sending it for the corner kick. The Onokuti Challengers need to really take care that there should be no other score this time before the halftime, because then it's going to be really tough for them to make another score. Tabuk sonar nugui tongo tabuk Bogafa Stadium sing joto phalijak oro Onokuti Challengers versus South Lions ni thangmung choli tongo thangmane bisingo South Lions ro kaisa score khai sekangai tongo and Onokuti Challengers ni bagai balai khai tough time choli tongo tabuk boroni borok score khai mania hangka kai borok o game no borok pai manglak Piaba, kaisa score like yanke borok equal nai draw ngi mannai, and there is a chance of penalty kick, but no, borok South Lions rock borok goalkeeper borni goalkeeper balai ke kam ne bagai ball romai teu chaine hai Onokuti Challenge rong ne bukhak ri rahor phika. साउथ लायंस अब तक बहुत बढ़िया डिफेंस, बहुत ही अच्छा स्ट्राइक, मिडफील्ड बढ़िया, अब तक गोलकीपर जबरदस्त, सब कुछ बढ़िया रहा अब तक इनका. तो साउथ लायंस भारी पड़ रहा है ओनोकुटी पर. देखिए फिर से आगे बढ़ गए ओनोकुटी के अपने पैरों के साथ बॉल को ड्रिलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. बढ़िया यहाँ पर, और गोल पोस्ट के ऊपरी खंबे पे लगा है, नहीं तो सीधा दाग जाता, 2 हो जाता. तो बढ़िया यहाँ पर फिर से देखिए वहीं पे ओनोकुटी के पैर में गेंद आ रही है, लेकिन वो जो मसक्कली टाइप होता है ना कि अब उसको लेके निकल के आ जाओ कटाक से, वो मौका नहीं बन पा रहा है. आप अच्छा से खेलिए, पासेस दीजिए, निकल के आ जाइए. फिर से अच्छा एक लंबा शॉट यहाँ पर गोलकीपर के हाथों में, कुछ नहीं, कोई चांस नहीं. कॉर्नर किक. एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं, लेकिन एक नाम लाखों में होता है, तो मेहनत करिए यहां पर, और मेहनत करके आगे बढ़िए और एक की बराबरी कर दीजिए. चलिए अभी कॉर्नर किक मिल गया है साउथ लायंस को. सीधा खींच दिया है. चलिए यहां पर फिर से वही, चलिए गोल पोस्ट आउट. दोनों ही टीम जो उम्दा गेम प्ले दिखा रही है इस मैदान पे, वो बोलने लायक नहीं है जो दोनों ही टीम कर रही है. बट कहीं ना कहीं ओनोकुटी का लेफ्ट बैक डिफेंस एंड राइट बैक डिफेंस जो है वो थोड़ा सा जो है मुझे लो दिख रही है. वो लोग गेंद को छोड़ रहे हैं, एंड अपने साउथ लायंस का जो मिडफील्डिंग है वो बहुत ही बढ़िया. फिलहाल अभी देखना पड़ेगा क्या वो गोल बना पाएंगे. एक बहुत ही अच्छा वाला कोशिश और इधर में गोल. प्लेयर घायल होते हुए, बट ओनोकुटी ने जो है
चांस नहीं छोड़ा, चांस में डांस दिखा दिया और रूम बना के गोल मार दिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर उनको चांस मिल गया ना अच्छा वाला मिडफील्ड से अच्छा एक पास मिला, रूम बना पाए तो गोल जरूर से जरूर मारेंगे। एंड वही हम लोगों को दिखते हुए बहुत ही उम्दा वाला प्रदर्शन, 1-1 के बराबरी में। दर्शक ऑलरेडी ग्राउंड पे है, उनका नजर भी ग्राउंड पे है, हमारे साथ दर्शक लोग भी है। एंड मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग जो भी टीम को सपोर्ट करते हो थोड़ा सा चीयर कर दो। आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है गोल के टाइम पे, थोड़ा सा चीयर अप करो तो प्लेयर्स को भी थोड़ा सा मनोबल मिलेगा और वो और ट्राई हार्ड करेंगे। वैसे एक जो प्लेयर है, चोट लगती हुई, आशा करता हूं ज्यादा नहीं लगी। देखिए जो अभी चोटिल हुए ना प्लेयर, वो थोड़ा बहुत देखिए अभी गेम में था। अगर वो बंदा जब तक अब तक खेल रहा था तो अच्छी टीम कॉम्बिनेशन थी। क्या होता है ना कि आप जब 11 खिलाड़ी पहले उतारते हैं ना, उनमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर किसी को चोट हो जाता है ना, वहां पर चोट लग जाता है, तो बाद में थोड़ा मसला इधर का उधर हो सकता है, क्योंकि सभी प्लेयर उस टाइम एक्टिव होते हैं। तो अभी नया प्लेयर आएगा, उसको थोड़ा समय लगेगा मैदान पर कि वो फिर से प्रिपरेशन हो, वो कॉम्बिनेशन बने, आगे बढ़े, खेले। तो इसमें जो आपका जो फॉर्मेशन होता है ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जो भी हो, खुशखबरी यह है कि उनकोटी पैंथर्स ने एक गोल दे दिया है अभी फिलहाल कुछ देर पहले। तो 1-1 बराबर। ओनोकोटी चैलेंजर, सॉरी। तो यहां पर 1-1 गोल ओनोकोटी चैलेंजर्स 1 और साउथ लायंस 1। तो बढ़िया अभी तक मैच रहा। मैं पहले भी कहा था उनके पास ये मौका बन रहा था और मौके को उन्होंने काम पे लगाया है। उन्होंने अपना डिफेंस, अपना स्ट्राइक दोनों को मिला के अच्छा लेफ्ट विंग, राइट विंग, जो भी है इनका फॉर्मेशन था वो काम में लगाया है और एक गोल दागने में सक्षम हो गए। ये जो राइट फ्लैंक से गोल हम लोगों को दिखा, ये बहुत ही बढ़िया था। शायद से अगर गोलकीपर को चोट नहीं लगता एंड गोलकीपर थोड़ा सा नहीं चूकते तो इधर पे गोल बचा सकते थे। बट उम्दा कोशिश, एक अच्छे जगह पे उन्होंने दाग देके अंदर घुसे और गोल बनाया। बाकी 1-1 के बराबरी। प्रेशर अभी दोनों ही टीम पे है। फर्स्ट हाफ अभी चल रहा है, देखते हैं फर्स्ट हाफ के एंडिंग से पहले कौन सा टीम जो है दूसरा गोल बना पाती है। बढ़िया वाला जो है एक पास मिला है और ये छीन लिया है गेंद, और बढ़िया वाला डिफेंस, कॉर्नर किक मिलते हुए। अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या उनोकुटी को वापस से और एक चांस मिलेगा। इधर पे एक हेडर की कोशिश नहीं, एक बढ़िया वाला पास, और वो चाहते हैं पास एंड प्ले करने के लिए, बट 32 नंबर प्लेयर जो है कते ही हार्ड वाला डिफेंसिव एंड टैकल खेल रहे हैं। एक कोशिश, बट जगह पे दाग नहीं पाए, बट कोशिश जरूर उम्दा था। हमारे साउथ लायंस के डिफेंडर 18 नंबर जर्सी एंड 32 नंबर जर्सी, बाप रे बाप, दाग देना पड़ेगा आप लोगों को। कते ही हार्ड वाला जो इधर पर डिफेंसिव खेल रहे हैं। वापस से और एक बार एक कॉर्नर किक, एक चांस हेडर का, क्या वो बना सकते हैं ये गोल? बट प्लेयर को चांस नहीं मिला इधर पे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, और अच्छा बहुत अच्छा गेम अब तक यहाँ पर। ओनोकोटी का अच्छा प्रदर्शन, बहुत देर थे इस तरफ साउथ लायंस की तरफ। तो आपको ये डी बॉक्स के अंदर में बहुत देर जब खेल चलता है ना, तो उसका मनोबल जो है ना ऑपोजिट टीम का, तो थोड़ा नरम हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छा खेल का प्रदर्शन अब तक देखा गया है। फिर से वहां पर एक शॉट गिरेगा, शायद पेनल्टी शॉट आ गया शायद वहां पर। बहुत ही बढ़िया वहां पर एक प्रदर्शन अब तक 1-1 की बराबर है। खेल जो है वो इतना धीरे धीरे बहुत ही अच्छी जगह पहुंच रहा है। मनोरंजन, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर, हेडर बनता हुआ, लेकिन नहीं, सीधे गोलकीपर के हाथ में, कोई मौका नहीं।
कहते हैं कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो लक्ष्य अपना ऊंचा रखिए दोनों ही टीम, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर खेल। हुइसल बज गया रेफरी का, देखते क्या निर्देश है यहाँ पर। ओनोकोटी चैलेंजर्स को एक शॉट मिल गया है यहाँ पर। एक लंबा शॉट खेले अपनी टीम को देके, दे दीजिए उनको, निकाल लेगा वो। स्ट्राइकर को दे के दीजिए, क्योंकि स्ट्राइकर वहां पर है जो फॉर्मेशन आपने बना के रखा है। बहुत ही अच्छी उछाल यहाँ पर, देखते क्या होता है। रोक लिया है साउथ लायंस ने। मैदान अब तक दोनों तरफ जबरदस्त तरीके से दोनों टीम में पूरे मैदान को कवर करके रखा है, चाहे लेफ्ट विंग बोलिए राइट विंग बोलिए, दोनों तरफ हलचल बराबर मची है दोनों तरफ। क्यों दीपांकर? हलचल तो मची है दोनों ही तरफ, बट ये देखना पड़ेगा कि दूसरा गोल किसके तरफ से हम लोगों को देखने को मिलता है। वैसे तो देख रहे हैं कि साउथ लायंस का जो डिफेंसिव है, मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव है। वो ट्राई कर रहे हैं आगे आने के लिए उनोकोटी टीम, बट आ नहीं पा रहे। बट अभी ये देखना पड़ेगा क्या डिफेंसिव के साथ साथ साउथ लायंस आगे बढ़ के और एक गोल दे पाएंगे कि नहीं। टाइम किसी के लिए नहीं रुकती। टाइम को मद्दे रखते हुए देखना पड़ेगा कि कौन सा टीम आगे जाएगा और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। और इधर पे देखने को मिल रहा है एक के ऊपर दो भारी पड़ रहे हैं, फिर दो के ऊपर एक भारी पड़ रहा है। देखना पड़ेगा, बहुत ही उम्दा वाला प्रदर्शन इधर पे वापस से। बट जो डिफेंसिव है भाई, एक बंदे के ऊपर चार चार बंदे टूट पड़ रहे, तो कैसे वो लोग आगे जाएंगे। बॉल पास करने का, बॉल जो है रूम स्पेस बनाने का उनको टाइम नहीं मिल रहा है। बत्तीस नंबर प्लेयर का थ्रो इन, बहुत ही उम्दा वाला जो है इधर पे वो लोग खेल रहे। जो स्प्लिट है उनका बहुत ही बेहतरीन है। बट आपको जैसे बोला कि मिडफील्डर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होना चाहिए। जितना मिडफील्डर अच्छा वो करेगा खेलेगा, उतना ही अच्छा उनको पासेस देखने को मिलेंगे दोनों ही तरफ से। बाकी मैं तो बोल ही रहा हूं, मिल्टन भाई बैठे हैं थोड़ा सा चुपचाप, उनका राय थोड़ा सा जानते हैं। अभी मैं उनको देता हूं ये माइक। Ladies and gentlemen, you're watching this live at TTAADC Super League 2024, and this is really awesome to see the players doing really well. Both the players, both the teams putting enough pressure to each other, scoring one each in this match, and so both the team are doing really well and are in equal pressure to one another, both Unagudi Challengers and South Lions. You're watching this live from Bogafa Stadium here this afternoon. Tautay bugsum naro nay mano live football match Bogafa Stadium ni bising tikay tay sini TTAADC ni Facebook page tikay naro nay manay ono live nó so vi bonai manai tai ma so phai bonai manai aba hai keno long shot no baro shoot play roka and shoot play na man goal post so play malia right wing striker try play mani fiaba mandia 21 jersey number 21 push play ka tai sai na hai no good challenges thaniwo ball sogi fika maximum time opportunities Germany tonera borga South Lions ro jeto borni area ni kaisa football ground borni kaisa practice proper practice oro khana hani kha khayo abni bagai borok kaham no ro khela phonogui tongo tai aba haken borni players sok belai ke energetic tai stamina belai ke kaham abni bagai borok yang ball no khitari kaham ke no thungi tong lai mano चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें हो रही थी अनबन सी, चलिए छोड़िए उसमें मत जाइए। ठीक है, यहाँ पर
अभी मसला है हल जो भी है, लक्ष्य आपका ये है कि बराबर पे मैच है और कोई एक गोल दाग दे। बहुत अच्छा मौका यहाँ पर ओनोकोटी चैलेंजर्स के पास, और देखिए किस तरह से पैरों का खेल देखिए बस। हाँ, निकाल लिया गेंद को, देखते हैं क्या करते हैं, और बाई बार फिर से ओ फिर से कॉर्नर। बहुत अच्छा शॉट। 24 नंबर के खिलाड़ी ने इतनी मेहनत की और 21 नंबर के खिलाड़ी ने अच्छा डिफेंड किया ना कि मौका ही नहीं बना, देखते बना ये जगह। आप अगर इस क्लिप को बार बार देखेंगे ना, मजा आएगा आपको, इतना अच्छा डिफेंस। मैं प्रदर्शन की तारीफ करूंगा साउथ लायंस का, लाजवाब प्रदर्शन यहां पर। कॉर्नर किक ओनोकोटी चैलेंजर्स, देखते हैं, उठा के मारिएगा जरा ताकि यहां पर देखते हेड बनता है कि नहीं। और पीछे वाले खिलाड़ी 18 नंबर का जर्सी, नहीं, मौका नहीं दिया। डिफेंस तगड़ा लायंस का। आगे बढ़ते हुए पैरों में गेंद लायंस का, साउथ लायंस आपस में देखिए किस तरह से सुंदर तरीके से लेके जा रहे हैं गेंद को। और साउथ लायंस को इसी तरह से जो इनकी जो मेंटेलिटी है ना अब तक की, अच्छी सूझबूझ रही है। इनका जो मिडफील्डर का जो काम है ना, बॉल को डिफेंस ऑफेंस की तरफ ले जाना, वो अच्छा बरकरार रहा है। लेफ्ट विंग राइट विंग बराबर खेल रहे हैं। वो जो इनका जो मतलब अब तक का जो दिमागी संतुलन है ठीक बड़ा, वो उठा के खेल दिया वहां पर। देखिए पीछे कोई खिलाड़ी है कि नहीं, नहीं, साउथ लायंस। अगर वहां पर रहता ना थोड़ा सा अगल बगल में तो फिर ये गोल हो सकता था, लेकिन बॉल वहां जगह छोड़ा नहीं, वो भी डी बॉक्स के अंदर ही है। लंबा खींच दिया यहां पर पैंथर्स ने। ओनोकोटी चैलेंजर्स बढ़िया आगे बढ़ते हुए फिर से गेंद देखिए वहां पर लायंस के पास, हल्का सा झुक के हेड। अब देखते क्या पर, या 4 खिलाड़ी के बीच में एक ओनोकोटी का प्लेयर अच्छा यहां पर डीलिंग कर रहे हैं। वो किस तरह से निकाल रहे हैं बीचों से, 4 के बीच से गेंद को निकाल रहे हैं। बढ़िया। अब तक जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं ना, डिफेंस का ऑफेंस का जितना भी सिस्टमेटिक जो जा रहा है, बढ़िया गेंद अब तक मैं जो भी देख पा रहा हूं। अब तक एक एक पे 100 भारी जो बोलते हैं ना, वही हाल है यहां पर। क्यों भाई, क्या लगता है आपको? बात बिल्कुल सही है। जैसा दोनों टीम खेल रही है वैसा तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है। शायद से फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने पे 7 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स का टाइम और बाकी है। बट जितना हम लोगों ने देखा है कि ऊनोकोटी का टीम पे थोड़ा सा मुझे डिफेंस में प्रॉब्लम लग रहा है। वही अगर मैं साउथ लायंस की बात करूं तो बाप रे बाप क्या ही प्रदर्शन। मैं बोलते बोलते हैरान हो चुका हूं, दर्शक भी देख पा रहे। साउथ लायंस कते ही रोर कर रहे हैं। जंगल का जो शेर है वो शेर का ताकत साउथ लायंस दिखा रहे। साउथ के लायंस जो कैसे दौड़ते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, वो जलवा इधर पे हम लोगों को मैदान पे दिख रहा है। बट द मेन थिंग इज, बहुत पहले ऐसा एक नियम हुआ करता था जिधर पे गोलकीपर के सामने और एक बंदा हुआ था जिसको स्वीपर या फिर ऐसा कुछ बोलते थे। तो मुझे ऊनोकोटी के एक प्लेयर ऐसा दिख रहा है जो बॉल आते ही हवा पे उछल रहा है, स्वीपर का काम कर रहा है। बाकी देखते हैं क्या ऊनोकोटी आगे आके खेलेगा या फिर वो इधर पे ही स्टॉप हो जाएंगे। बाकी साउथ लायंस की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया पास ट्राई कर रहे हैं टैकल करने का, और टैकल इधर पे होते हुए वापस से ऊनोकोटी के पैर में गेंद। बहुत ही उम्दा वाला पास। आगे बढ़ते हुए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं गोल देने का, बट जो डिफेंडर है, मैंने आपको बोला 32 नंबर डिफेंडर और 18 नंबर डिफेंडर बॉल को आगे कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दे रहे। आप बस देखिए उनका पास, पैर में गौर रखिए। 13 नंबर प्लेयर एक अच्छा वाला पास अभी इधर से, क्या कॉर्नर से वो लोग एक पास दे पाएंगे या फिर नहीं, आउटसाइड हो गया। गेम बोरिंग नहीं जा रहा है। जो भी दर्शक देख रहे हैं ऐसा लग रहा होगा कि गेम थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है क्योंकि कोई गोल नहीं कर पा रहा। बट अगर हम लोग प्लेयर की माइंड से अगर हम देखें या फिर उधर पे हम लोग फील्ड में नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकते। बट जो प्लेयर्स अपना उम्दा प्रदर्शन, जो मेहनत, जो कठिन परिश्रम उन्होंने किया है वो ही पेश कर रहे हैं। एंड अभी टाइम का मैटर करता है, बहुत ज्यादा टाइम मैटर करता है। लक भी फेवर होना चाहिए क्योंकि पासेस एंड प्ले
वो लोग कर तो रहे हैं, बट बहुत ज्यादा मैटर करता है टाइम, टाइम कैसे निकाल पाते हैं, रूम कैसे बना पाते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है इधर पे। वैसे मैं जितना देख पा रहा हूँ कि साउथ लायंस बहुत ही आगे जाके खेलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए वापस से बेहतरीन वाला टैकल और आगे बढ़ते हुए मिथुन भाई, आपको क्या लगता है कि साउथ लायंस और एक गोल कर पाएगी कि नहीं फर्स्ट हाफ से पहले? देखिए उसके लिए साउथ लायंस को क्या करना है ना, उनका जो जो डिफेंस है ना और स्ट्राइक, उसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि मिडफील्डर अगर डिफेंस को अगर देती है तो इसमें लेखा जोखा बन सकता है कुछ, और स्ट्राइकर को बॉल देना है। और यहां पर विसल बच गया है और खेल आगे बढ़ रहा है। लेकिन मजा देखिए, इसमें मजा क्या है, इसमें मजा है कि कोई गोल कर नहीं पा रहा है, मतलब कोई किसी से कम नहीं है, दोनों में ही दम है और अपना दम दिखा रहे हैं यहां पर मैदान पर दोनों ही टीमें। ये नहीं मसला है कि कोई गोल कर दिया, किसी ने 5 कर दिया, किसी ने 6 कर दिया, किसी का हुआ नहीं। बात यह है कि किसी के गोल अभी तक 1-1 की बराबरी पर है। तो दोनों ही टीम की कोशिश रहेगी, क्योंकि कुछ देर के बाद अंतराल होने वाला है, 45 मिनट्स खत्म होने वाले, बड़ा हुइसल बच जाएगा। तो फिर इनकी कोशिश तो यही रहेगी ना कि भाई एक गोल दाग देते हैं। हाँ चलिए चलिए, झप्पी ले रहे हैं यहां पर आपस में, जादू की झप्पी प्लेयरों के बीच। चलिए वो बोल रहे भाई साहब मैंने तो आपको झप्पी ले ली, लेकिन ओनोकुटी बोल रहे कि चल भाई मैं मार देता हूं, तू छोड़ दे। चलिए बहुत अच्छी थ्रो यहाँ पर, थ्रो इन यहाँ पर ओनोकुटी द्वारा, फिर से आउट, ओनोकुटी का थ्रो इन। अच्छा सूझबूझ होना फुटबॉल चल रहा है यहां पर। फिर से हुइसल बच गया है, नहीं वह जगह संतुलन नहीं बन पाया वहां पर। फिर से ये किक देना पड़ेगा इनको। 13 नंबर के खिलाड़ी हैं साउथ लायंस के। हार तब तक पसीना बहाना पड़ेगा आपको कि 90 मिनट्स में जो इतना पसीना बहाएगा ना, मेहनत करेगा, उसको सफलता मिलेगी। कि सफलता मेहनत से मिलती है, घर बैठे नहीं। ये फुटबॉल से सीख है। हर कोई जो यहां पर बैठे हैं दर्शक, जो हमें सुन पा रहे हैं, जो कहां पे है, मेहनत आपको मैदान पे मिलेगी। जो जहां जिस फील्ड में है, आप मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत करनी होगी उसके लिए, जो जिस फील्ड में है। लेकिन यहां पर इतना बड़ा आयोजन किया गया है TTADC के लिए, बहुत बढ़िया। यहां पर ओनोकुटी के पास गेंद, और देखते हैं इस गेंद को अच्छा पास दे पाते कि नहीं। अच्छा विंग्स पे खेला गया वहां पर, और देखिए यहां पर आ गए हैं साउथ लायंस। अच्छा डिफेंस, और फिर से वहां पर बॉल देखता हूं कहां जाता है, लेकिन यहां पर अच्छा फिर से यहां पर पास दिया गया है। बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, फिर से चला गया साउथ लायंस के पास। लेफ्ट विंग 17 नंबर के खिलाड़ी के पास, ओनोकुटी के पास फिर से गेंद, और ओनोकुटी अगर अच्छा पास देती है यहां पर कुछ हो सकता है। देखिए फिर से डिफेंस देखिए इनका, साउथ लायंस का, गोलकीपर के हाथ में कोई मौका नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए गेम को किस तरह से मनोरंजन बना दिया है दोनों टीमों ने, भरपूर मजा दे रहा है। मनोरंजन की कोई कमी नहीं है, पर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट दे रहे हैं दोनों टीम, 1-1 की बराबर में दोनों। लेफ्ट विंग, राइट विंग, मिडिल, डिफेंस, स्ट्राइक, सब जबरदस्त दोनों टीम का। क्यों मिल्टन दा? Yeah, it is really awesome to see both the players, both the teams doing really well. And like I said before, it's the South Lions that roars in the jungle of this South Tripura. And Unokuti is not just Unokuti, but they are also challengers. Unokuti challengers are also challenging really, really hard towards scoring another goal. But you know what? It is important to see who's going to make the next score before the halftime, and it's halftime now, and they will be back after the halftime. It's really awesome to see both the players doing really well, scoring one each for both the team, Unokuti Challengers and the South Lions. We'll be back after a small break of singing and dancing. And so let us first of all listen to a very beautiful number from one of our singer who will be coming here amongst us. Sinipaskango Rosap Keringrok Tongo Borni Tano Sing Rosamung Tangsa Tangsa Clay Sing Kanalena Peritahuste Busong Nornipaskango Tu Penita was Habatunai Nor Sadi Norni Savanang Tu Penay Borni Bumong Rogang Tau Saklay Duana.
10 minutes. Okay, bungkiha jadi kene. 10 minutes. Abun pore then film complete. Suara bukti. Hello, hello. Phadingge sing tabok puilan or samang khnalaine sini bukhuk onomika riang ni khukti kai sing rasamung tangsa khnai nalai nai o special breako obono puila rasamung phadi sing khnai nai ni bogafa stadium phadingge jara rir nai sini bukhuk onomika riang no. Hello everyone. Ang tao tahar saknai. So ang breong ya siya mami ke track bersa tumo ba. I hope jotono khnatha onai kha kheu.
चाहिए सवारी, दिल को चाहिए दिलवारी, तुमको चाहिए अनारी, कब होगी मन को बोरी, तेरी जुल्फें हैं काली, तेरी नाकों में मोती, तेरी जुल्फें हैं काली, मेरी नाकों में है मोती, बढ़ती है जवानी, दिलों में काली, मैं हूँ नोटिस का बावरी, उठाएगा कौन मेरी डोरी, मैं हूँ नोटिस का सानी, मेरा नाम है चोरी। आँखों में है मिठा, सांसों पे है मिठा, होठों पे है मिठा, आज मेरा जब पिया, ऐसे मेरा जिया, सब पे दिल लगाया, सामने आके बया, मैं हूँ नोटिस का बावरी, उठाएगा कौन मेरी डोरी। Thank you so much everyone. Hello. Tabuk sini bis kawa kisa. Aba cerai rao. Roti ne school ne cerai rao. Ba ekta hojagiri dance. Joto ne bis kang puno ne hini asa khai. Practice khai tomo ba. Bolo na phok kisa jora rina ne bagoi. Ang koi jao. Thank you. Aba ne boro tebe se chom. Je gan tebe se khna lai nai. Chamo. ধন্যবাদ। Hello. Joto ya phako salai de, joto ya phako de. Bari ke nai thwale. Ini ba Bau khela thumone, thumma lila mani somoyo. Cha Mumbai, sa Mumbai. Sini boka phama kan cha. Amo prano Joto thakalai ya phakhalai di hiya ka bo jao. School pore tunai try ro sebo bis kangle tre kam ke sana no hi to ka to ma to bol khela thukron bai khodi no chini moya chani ni sio pho samong krong
cái bài khô to to lệ anh bảo vệ rất là sang đi from ra nó bắt đầu nhớ phải khô về thắc cái này nó anh hiện cho tụi nó mắc cả bom xì 살탕포산 안 커이 까보 살탕포스 찌니 내내로 bomba 살탕라베 산안 커이 까보
हेलो हेलो फाइदिंगै जों ताबुक तैसायनाय रतामं तांसाख नायनालायनो सिनि बुखुक बाबली जमातियानि खुक्तिके बेलाइके हामबाय सिनि हजागिरि मोसानाय रंनो जों किसा खाकसामानि मारि जों याफालायनो बेलाइके हामबाय जों जत याफा खरलायनो बंनि बागै बेलाइके हामबाय हामबाय अजरानो बेलाय जरा काहामनि बांगै जतनो हामबाय रवो ते अरो जत फाइ माजक फाइने नगराय रंनो हामबाय ते स्पेशली सिनि सार देबि नो हामबाय मारू पाल के याफा खरलाय बेनि जतनो
Belai belai ka hambai singno sini buhuk babli jamatia belai ka nai tokai khnata tokai ratawi khana klanga phari inge sang chengle sini tini sini second round of the match. Ladies and gentlemen, we are now again beginning for the second round of the match, and the team playing here at Bogafar Stadium is South Lions versus Unokuti Challengers. As you can see, the players have already started and are in the game. And so, thank you so much for being here with us this afternoon. It is सेकेंड हाफ हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है और उनोकुटी थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलने की कोशिश कर तो रही है। देखना पड़ेगा क्या हलचल करते हैं ग्राउंड पे। बहुत ही उम्दा वाला डिफेंडिंग, और इधर पे साउथ लायंस आगे बढ़ते हुए बढ़िया वाला पास, और ये क्या गोल हो पाएगा। बहुत ही उम्दा वाला कोशिश, बट टैकल, अच्छा वाला टैकल हुआ है। 35 नंबर प्लेयर आगे आ रहे थे, बट अच्छा वाला इन लोगों को रूम नहीं मिला, नहीं तो ये गोल बन सकता था। प्लेयर को चोट लगते हुए सेकेंड हाफ हम लोगों का भी स्टार्ट ही हुआ है। दोनों ही टीम ने एक एक गोल किया है, और एक ही चीज बोलना चाहूंगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम आगे बढ़ता रहेगा। बट गोलकीपर के ऊपर भारी भरकम अटैक, गोलकीपर को थोड़ा सा चोट पहुंचते हुए मेडिकल टीम आ चुकी है, बट हम लोग देखते रहेंगे। गोलकीपर के साथ कोई भी कशमकश नहीं होना चाहिए। ये गेम जो है प्लेयर के अंदर है। इधर पे गोलकीपर को आप लोग चोट मत पहुंचाओ, बेचारे गोलकीपर को बहुत लगा है। और इधर पे थ्रो इन, आगे बढ़ते हुए 11 नंबर प्लेयर से एक बहुत ही उम्दा वाला पास अभी ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ग्रूम बन चुका है, गोल की कोशिश, बट डिफेंडर ने बॉल छीन लिया। वापस से एक पास करने की कोशिश, बस टैकल। और इधर पे बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव गेम प्ले दोनों ही टीम के तरफ से। एंड अभी देखना पड़ेगा अभी ये देखना पड़ेगा कि सेकंड हाफ में कौन सा टीम जो है दूसरा वाला गोल बना पाती है। एक बहुत ही उम्दा वाला प्रदर्शन, अभी सूरज भी अपना रंग दिखा रहा है, जलवा दिखा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कौन सा टीम अपना जलवा दिखाएगा। 11 नंबर प्लेयर के तरफ से कॉर्नर किक, साउथ लायंस हाथ में एक चांस है, क्या ये हेडर हो पाएगा। आंख रहेगा ग्राउंड पे, विसल बजती हुई, और ये कोशिश, बट अभी भी चांस है। दोनों ही टीम जो है आगे खेलने की कोशिश कर रही है,
बट साउथ लायंस बहुत ही अटैकिंग पे खेल रहे हैं, क्योंकि उनको जीतने के लिए आगे बढ़ना है, उनको पता है, रणनीति चेंज किया है। एक कोशिश बट डिफेंडिंग बहुत ही हार्ड वाला, वापस से एक हेडर के साथ एक पास 24 नंबर प्लेयर के पास, और ये 20 नंबर प्लेयर ने अच्छा वाला किक मारते हुए मिडफील्डर के पास अभी जाते हुए अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वापस उधर पे कशमकश गेम प्ले होते हुए मिडफील्डिंग पे, क्या वो लोग आगे जाएंगे, क्या ये क्या होगा, हम लोग अभी देख रहे हैं लाइव। We are live from TTAADC सुपर लीग। आप लोग फेसबुक में, यूट्यूब में एंड अदर प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो। मोस्टली आप लोग यूट्यूब एंड फेसबुक में देख सकते हो। जो भी इधर पे लोग आके नहीं देख पा रहे, आप लोग इधर पे मजा उठा सकते हो लाइव के थ्रू, तो देखते रहिए। एंड कहीं ना कहीं मिल्टन भाई एंड मिठुंदा, मुझे ऐसा लग रहा है साउथ लायंस बहुत ही आगे जाके पुश करके खेलने की ट्राई कर रही है। आपका इधर पे क्या राय है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, बात यह है कि अभी आपको सूझबूझ की फुटबॉल खेलनी है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा दोनों 1-1 की बराबरी पे है। हाफ टाइम खत्म हो गया है और अभी आपको जो डिफेंस है और स्ट्राइक दोनों को सूझबूझ की पास, सूझबूझ का थ्रो, कॉर्नर संभाल के उठा के, ताकि आपका यहाँ पर पलड़ा भारी हो सके। नहीं तो मुश्किल तो दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि दोनों 1-1 पर है। तो अब देखना है कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट विंग राइट विंग जो है वो जब बॉल को लेके आएंगे ना साइड लाइन से, उनको थोड़ा मतलब ड्रिलिंग अच्छा करना पड़ेगा। नहीं तो आपको वो कोशिश जो करेंगे ना वो गवार ऐसे बेकार जाएगी वो। तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि चोट भी ना लगे उस हिसाब से भी खेलना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी आपके पास जो टीम है 11-11 की, उसमें एक अच्छी कॉम्बिनेशन है, अच्छा टीम वर्क है दोनों टीम। क्योंकि जिन्होंने 1-1 दिया है हाफ टाइम से पहले, तो आप किसी को भी आप कमजोर नहीं समझ सकते, दोनों ही मजबूत टीम है। अभी देखिए आउट हो गया है साइडलाइन से बाहर गेंद, और थ्रो इन है आपका ओनोकुटी का। तो बढ़िया यहाँ पर खेल का प्रदर्शन ओनोकुटी और साउथ लायंस का, बहुत ही अच्छा। और ये खेल जो बगफा में हो रहा है, बहुत ही अच्छे दर्शक यहाँ पर मौजूद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। फुटबॉल गेम ही ऐसा है, क्योंकि आपका वक्त जाया नहीं होता है। 90 मिनट्स का खेल, 15 मिनट का विराम, और फिर पूरा गेम। 90 मिनट्स आप पूरे मैदान में रहेंगे, और 90 मिनट्स आप भी परेशान दिमागी तौर पर जो दर्शक है, क्योंकि दर्शक जो जिसको मानते हैं, जिस खेल के फेवर में है उसको सपोर्ट करते, दिमाग में उनका भी खेल चलता है। फुटबॉल ऐसे गेम है जो बाहर दर्शक है उनके दिमाग में खेल, अरे अभी ये गोल करेगा, ये चूक गया है, यहाँ से मिस हो गया है, ऐसा होता तो वैसा होता, तो दिमाग में गेम चलते रहता है। और सोचिए आपके दिमाग में इतना गेम चलता है, तो मैदान में जो खिलाड़ी हैं 11-11, उनके दिमाग में कितना खेल चलता है। तो अच्छा, यहाँ पर फिर से अच्छी पास, यहाँ पर देखते क्या करते हैं, अच्छी डिफेंस यहाँ पर ओनोकुटी का, फिर से बॉल, अच्छी पास यहाँ पर फिर से साउथ लायंस का। देखिए क्या करते हैं, और अच्छी कोशिश, और निकालने की कोशिश की थी पैर के नीचे से, लेकिन कोई मौका नहीं। यहाँ पर फिर से एक उठा के खेलना चाहिए, देखते क्या होता है। चलिए गोल आउटलाइन की तरफ। देखिए वो क्रोधित हो गया कि भाई साहब यहाँ देना चाहिए था मेरे को 13 नंबर के जर्सी, कि मैं यहाँ खड़ा था, उठा के दे देते भाई, मैं दे देता। बिल्कुल, जब आप उसको गोल को वहां से साइड लाइन से लेके आ रहे थे डी के पास से, तो डी लाइन के वहां से उठा के मार देते। अभी गोल जो है देखते हैं किसके पलड़ा भारी होता है और कौन पहला गोल दाग देता है हाफ टाइम के बाद। क्यों मिल्टन दा? बिल्कुल, आज बहुत ही शानदार गेम देखने को मिला है हम लोगों को, एंड बोथ द टीम्स प्लेइंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग। 9 एकै और टीम रॉक बेलाइके उनुकुटी चैलेंज रॉक उनुकुटी चैलेंज सो बेलाइके काहन नथुमै दङ। तै अब हाइकन बरक बल बु पुश लाइ दङ फर्स्ट हाफ नि यागलो 1 each बरक goal score play लेका। तै अब हाइकन तब बरक तेवेसाइन हाई साबो second half of बरक score खेमनो। otherwise और बरनी draw match एंगाने chances
Boni Yagolo no penalty shots from Ngani chances tongo. Jona Beleke Yago Kong, Piaba Borok Joto, Chaitok Letongo, Sabo Borobusudor take score claimano, Tai Sabo Tinini, all match no Pai, Sagangi Tangmano, our Borok Jotono, Chaitok Letongo. Dono team no Borok, Nailetongo Sabo Kaimano, Samiako. Left wing ni players of Tabuk, right wing ni players on Horka. Tai Unokuti challenges rock ni Tanio Beleke pressure Glidongo Tamnihinba. South Lions rock Beleke strong aggressive mode over Tanglaitongo and Tabuk scored the Clement Elegana Piaba or handball signal Rozaka. It is important to say that this match is being showcased in TTAADC Facebook official page, and you can watch this live from wherever you are. So, and also in few other channels that you may be able to watch this live sitting at your home comfort. मैं इतने टाइम से ये गेम देख रहा हूँ, सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है, बार बार वही देखने को मिल रहा है। 13 नंबर प्लेयर राइट फ्लैंक से आके, जो कि साउथ लायंस के मैं बोल रहा हूँ, 13 नंबर प्लेयर जो राइट विंग है वो राइट फ्लैंक से आके खेलने का ट्राई कर रहे हैं, 21 नंबर प्लेयर को पास दे रहे हैं, बट वो पास के थ्रू जो है स्ट्राइकर को पास देके नहीं खेल पा रहे हैं। उसके वजह से उनका 2-2 जो गोल है वो मिस हो गया। वापस से उनको एक ट्रायल वापस से मिला है गोल दिखाने का, जलवा दिखाने का, बट इधर पे क्या कर पाएंगे 17 नंबर प्लेयर, अच्छा वाला पास, बट वापस से डिफेंडर ले चुके हैं बॉल। यही जो है मैं बार बार देख पा रहा हूं कि राइट या फिर लेफ्ट फ्लैंक पे उनको एक अच्छा वाला पास मिल रहा है 17 नंबर और 21 नंबर प्लेयर को, बट वो जो है आगे जाके उसको पुश फॉरवर्ड करके रूम बना के गोल नहीं दे पा रहे। अभी एक मौका है, क्या मौके को वो लोग निकाल के गोल देंगे? नहीं, बार बार वही गलती, बार बार वही गलती साउथ लायंस के तरफ से। एंड उनोकुटी का बहुत ही बढ़िया वाला डिफेंस। आपको मिठुंदा, आपको मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो साउथ लायंस की स्ट्रेटेजी है, जो लेफ्ट विंग और राइट विंग आगे आके और इधर पे जो उनका स्ट्राइकर उनको पास एंड प्ले करने का, देखो वही वापस वही चीज हो रहा है। 17 नंबर प्लेयर के पास बॉल, बट वो पास नहीं कर पा रहे 35 नंबर प्लेयर को। राइट विंग लेफ्ट विंग 13 नंबर 17 नंबर एंड बीच में है 35 नंबर के प्लेयर, उनको पास नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से गोल नहीं बन पा रहा है। बट क्या वो हो पाएगा? उनको थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिड फील्डिंग से उनको पुश लाना पड़ेगा, नहीं तो गोल बनाना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। वैसे दूसरे साइड में अगर उनोकुटी की बात करें तो उनोकुटी बॉल लेके नहीं जा पा रही है आगे, उनका मिड फील्डिंग थोड़ा सा इधर पे मुझे लो फील हो रहा है। एंड साथ साथ में डिफेंडिंग बोले तो दोनों ही टीम का बहुत बढ़िया है। आपका राय क्या है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि जो आप लेफ्ट विंग की बात कर रहे हैं, जो बॉल लेके आ रहा है वो दे नहीं पा रहे। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर एक्चुअली नॉर्मली हम लोग क्या होता है, राइट लेग के जो है वो ज्यादातर प्लेयर निकलते हैं। लेफ्ट में जो शॉट्स होते हैं ना, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए भाई, क्योंकि इसको आपको इस साइड लाइन से जब आप मारते हो उसको, तो उसके लिए लेफ्ट लेग में बहुत ताकत होनी चाहिए। जब ये शॉट खेलते हैं ना तो उड़ के आना भी चाहिए वहां पर, तो उतना जोर नहीं बन पाता। उससे मतलब क्या होता है ना कि आप उसका बैलेंस नहीं कर पाते बॉल को अपने पैर पर। अगर आप ठीक से बैलेंस करके उसको शॉट खेलेंगे ना तो लेफ्ट लेग उसका यूज भी उस तरह से होना चाहिए। देखिए, अगर राइट विंग जो है ना उसका शॉट देखिएगा बराबर आता है इस तरफ, लेफ्ट विंग का शॉट देखिए आता नहीं। कितनी बार गोल लाइन से बाहर बॉल आ गया? 3-4 बार अभी तक। तो अभी देखिए कि क्या हो रहा है, कितना अच्छा कैरी हो रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों टीम के बीच अच्छा ड्रिबलिंग चल रहा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। ओनोकुटी के द्वारा ओनोकुटी देखना है क्या कोशिश कहां तक कर पाती है, अच्छी कोशिश। और दर्शक देखिए यहाँ पर मैदान पे खचाखच एकदम। और देखिए फुटबॉल के जो लवर्स हैं, इसको आशिकाना बोल सकते हैं कि मौसम और दर्शक दोनों आशिकाना है यहाँ पर आज। इस टीम के लिए इतना सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये होता है फुटबॉल के लवर्स, जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल से प्यार करते हैं। हम हैं कहां पर? बेलोनिया में, जहां पर सॉरी बोगाफा में। और बोगाफा में इतने दर्शक इतने प्यार करते हैं ना फुटबॉल को कि लाजवाब। फिर से एक लंबा शॉट यहां पर